माय चैनल। आज का चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको एनसीईआरटी ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। चलिए शुरू करते हैं। You have already learned that neural system provide a point-to-point rapid coordination among organs. The neural coordination is fast but short-lived, as nerve fiber do not innervate all cell of body, and by cellular function need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function of the body. Endocrine gland and hormone. Endocrine gland lack ducts and hence are called ductless gland. Their secretion is called hormone. ठीक है. The classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine gland and released into the blood and transported to distantly located target organ has a current scientific definition as follows. हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट. देखिएगा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखना है, एक एक लाइन. हार्मोन क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. द न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू हार्मोन secreted by organized endocrine gland. Invertebrate process very simple endocrine system with few hormone, whereas large number of chemical act as a hormone and provide coordination in vertebrae. Human endocrine system is described here. Human endocrine system: hypothalamus, pineal gland, pituitary gland, thyroid and parathyroid, thymus, okay, pancreas, adrenal gland, ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल. दिस एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सारे. तो चलिए पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी constitute endocrine system. Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, gonads, testis in male and ovary in female are the organized endocrine body in our body. In addition to this, some other organ, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormone. A brief account of the structure and function of all major endocrine gland and hypothalamus of the human body is given in following section. द हाइपोथैलेमस. देखिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं. ये एक तरह से हेड मास्टर है सारे ग्लैंड का. इसी थर्मो रेगुलेशन वगैरह वेरियस फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है. एज यू नो, hypothalamus is the basal part of diencephalon, forebrain, and it regulate a wide spectrum of body function. ठीक है. It contains several group of neurosecretory cell called nuclei which produce hormone. These hormone regulate the synthesis and secretion of pituitary hormone. Okay. However, the hormone produced by hypothalamus are two types: the releasing hormone, which stimulate the secretion of pituitary hormone, and the inhibiting hormone, which inhibit the secretion of pituitary hormone. For example, the hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone (GnRH) stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropin. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit the growth hormone from pituitary. These hormone originating in hypothalamic neuron pass through the axon and release their nerve ending. ठीक है. These hormone reach the pituitary gland through portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. The posterior pituitary are under the direct neural regulation of hypothalamus. देखिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है, लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू अपना मैसेज सेंड करता है किसको? वेरियस हार्मोन को. ठीक है. अब देखिए पिट्यूटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये मास्टर है. जैसे हाइपोथैलेमस क्या है? वो हेड मास्टर है, जैसे प्रिंसिपल है, और ये क्या है? ये टीचर्स है. ठीक है. लेकिन फंक्शन बहुत रेगुलेट करता है पिट्यूटरी, और वो सारा जो भी फंक्शन रेगुलेट करता है वो हाइपोथैलेमस के हेल्प से. तो चलिए देखते हैं. ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पिट्यूटरी हार्मोन का. ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, पोर्टल सर्कुलेशन ये एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्ट कंडक्शन होता है. ठीक है. तो पढ़ लेते हैं. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका. देखिए 2-3 बार पूछा गया है सेला टर्सिका अपने. एंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाल्क.
इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखिए दो पार्ट में एडिनो हाइपोफाइसिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस अ ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट एमएसएच सीक्रेट करता है। कौन? पार्स इंटरमीडिया। हाउएवर इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टालिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूरो हाइपोपाइसिस पार नर्वोसा आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरो हाइपोपाइसिस जो न्यूरॉन्स से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर एंड सीक्रेट टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। देखिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसमें सिर्फ दो हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। यही एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे तो कई हार्मोन होते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रिनोकार्टिको, ये सारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के होते हैं। तो पोस्टीरियर के सिर्फ दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और बाकी जितने बचे एंटीरियर पिट्यूटरी के। ओके, विच एक्चुअली देखिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं वो एक्चुअली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? हाइपोथैलेमस में, एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरॉन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू द गाइगेंटिज्म। ठीक है, एंड लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, इंपॉर्टेंट, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially in the face, called acromegaly. ठीक है, याद रखिएगा, which may lead to the serious complication and premature death if unchecked. The disease is hard to diagnose in the early stage, often got undetected many years until change in the external fear become noticeable. Prolactin, दूसरा हार्मोन, regulate the growth of mammary gland. Important, मेमोरी ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है? प्रोलैक्टिन, and the formation of milk in them. ठीक है, TSS thyroid stimulating hormone, synthesis of secretion of thyroid hormone from thyroid gland. ACTH adenocorticoid thyroid hormone, adenocorticotropic hormone, ये क्या करता है? Stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from the adrenal cortex. ठीक, फिर LH और FSH क्या करते हैं? LH FSH gonadal activity and hence called gonadotropin. In male, LH stimulate the synthesis and secretion of hormone called androgen from testes. In male, FSH and androgen regulate spermatogenesis. Important. In female, LH induce ovulation, a fully mature follicle, Graafian follicle, and maintain the corpus luteum formed by the remnant of Graafian follicle after ovulation. FSH stimulate the growth and development of ovarian follicle in female. अब देखिए MSH melanocyte stimulative melanin containing and regulate the pigmentation of skin. ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन कराता है, अपर बॉडी एंड स्टिमुलेट कॉन्ट्रेक्शन। इन फीमेल इट स्टिमुलेट वेरियस कॉन्ट्रेक्शन इन यूटेरस। देखिए जब चाइल्ड बर्थ होता है तो वेरियस कॉन्ट्रेक्शन होता है मायोमेट्रियम मसल में, वो कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से बेबी बाहर आता है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोप्रेसिन एक्ट ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल, and thirdly reduce the loss of water through urine called diuresis. Hence it is also called antidiuretic hormone, ADH. And impairment affecting synthesis and release of ADH result in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to the water loss and dehydration, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस होता है। दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मिलाइटस शुगर के कारण होता है, डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है? एडीएच के नहीं रिलीज होने के कारण। ठीक है, तो ये दोनों को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अब पीनियल ग्लैंड पढ़ लेते हैं। The pineal gland. The pineal gland is located in the dorsal side of forebrain. Pineal secrete hormone melatonin. Melatonin play a very important role in regulation of 24 diureth. देखिए अब 24 diureth में 24 आवर्स में जो जो काम करते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? pineal gland. ठीक है, for example, it help in maintaining normal rhythm of sleep-wake cycle, body temperature. In addition, melatonin also influence metabolism, pigmentation, and menstruation cycle as well as the defense capability. ठीक है, अब क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज देख लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए गाइस, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब विच आर लोकेटेड इन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड विथ thin flap like connective tissue called isthmus. The thyroid gland is composed of follicle and stromal tissue. Each thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing the cavity. These follicular cells synthesize two hormone, T4 and T3, ठीक है। Iodine is essential for normal rate of hormone synthesis of thyroid. Deficiency of iodine in our diet result in hypothyroidism and enlargement of thyroid gland commonly called goiter. Hypothyroidism during pregnancy cause defective development and maturation of growing baby. देखिए, अगर थायराइड की कमी है तो डिफेक्टिव बेबी का ग्रोथ होगा, ठीक है। रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस भी होगा, एबनॉर्मल स्पिन, डीफ म्यूटिज्म इन एडल्ट ह्यूमन। हाइपोथायराइडिज्म मे कॉज मेंसुरेशन साइकिल टू बिकम इरेगुलर, इंपॉर्टेंट। Due to the cancer of thyroid gland or due to the development of nodules of thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid gland increase abnormally, ठीक है। कल हाइपरथायराइडिज्म। एक्सोपेथेलिक गाइटर का बताइए, द फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जब ज़्यादा थायराइड हो जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, ये ज़्यादा जब थायराइड होता है तब होता है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म एंड वेट लॉस, ग्रेव डिसीज रहते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड रेगुलेशन इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। द हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी का फॉर्मेशन। थायराइड ग्लैंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन प्रोटीन हार्मोन TCT। देखिए गाइस, पैराथायराइड इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए, थायराइड ग्लैंड हो गया था, अब थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या प्रेजेंट है, पैराथायराइड। वन पेयर ऑफ ईच टू लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। Parathyroid gland secrete peptide hormone called parathyroid hormone. The secretion of PTH is regulated by circulating level of calcium ion. Parathyroid increase calcium level in blood. Parathyroid act on bone and stimulate the process of bone reabsorption, ठीक है, demineralization. The PTH also stimulate reabsorption of calcium from the renal tubule and increase calcium absorption from the digested food. It is thus clear that the PTH is a hypercalcemic hormone. It increase the blood calcium level along with TCT. It play a significant role in calcium balance in body. Okay. अब guys देखिए, thymus. The thymus gland is the lobular structure located between lung, behind the sternum and ventral side of aorta. The thymus play a major role in the development of immune system. The gland secrete a peptide hormone called thymosins. The thymosin play a major role in differentiation of T lymphocyte, which provides cell-mediated immunity. ठीक है, थाइमस ये एक तरह से आपका लिम्फोसाइट की तरह काम करता है। इन एडिशन टू थाइमोसिन आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स इन ओल्ड पर्सन बिकम वीक। अब देखिए, एड्रिनल ग्लैंड। one body our body has one pair of adrenal gland, one of anterior part of each kidney. These gland composed of two type of tissues. The centrally located tissue is called adrenal medulla and outside adrenal cortex. दो पार्ट होते हैं, ये बीच वाला एड्रेनल मेडुला, बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब एड्रेनल कॉर्टेक्स का वो प्रोडक्शन कम होता है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। कॉट एक्यूट वीकनेस एंड फटीग लीडिंग टू द डिसीज एडिशन डिसीज। The adrenal medulla secrete two hormone called adrenaline and epinephrine. Non-adrenaline तो और इसको कंबाइन करके कहते हैं कैटेकोलामाइन। और एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। जब आपको कभी स्ट्रेस होता है, जैसे आपने कभी ऐसे अचानक स्नैक देख लिया, तो आपके हार्ट बीट वगैरह सारी चीज़ वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आप रन करने लगते हैं, वो सारी चीज़ स्ट्रेस में एक्टिव होते हैं। काइंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड दिस इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फ्लाइट ऑफ फाइट कहते हैं, ठीक है। और दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस। देखिए, जब कभी भी आप डरते हैं तो आप ज़्यादा अलर्ट होते हैं, पीपील जो होता है वो डायलेट हो जाता है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, मतलब रोएं खड़े और रोंगटे खड़े होते हैं जिसको बोलते हैं, स्वेटिंग होती है, मतलब गर्मी ज़्यादा निकलती है। बोथ हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। कैटाकोलामाइन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन। देखिए, जब आप कभी भी स्ट्रेस में आएंगे तो जो ग्लाइकोजन होता है वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट।
अब देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स कैसे डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर से होता है, जोना फेसिकुलेटा जो मिडिल लेयर होता है, और जोना ग्लोमेरुलस जो आउटर लेयर होता है। द एड्रेनल कॉर्टेक्स secrete many hormone commonly known as corticoids. The corticoid which is involved in the carbohydrate metabolism are called glucocorticoid in our body. Cortisol is the main glucocorticoid. Cortisol which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticoid. Aldosterone is the main mineralocorticoid. Important. देखिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है क्या, ग्लूकोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस and inhibit cellular uptake and utilization of amino acid. Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as kidney function. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड particular cortisol produce anti-inflammatory reaction and suppress the immune system. Cortisol stimulate RBC production. Aldosterone act mainly at the renal tubule and stimulate the reabsorption of Na plus and water and excretion of potassium and phosphate ion. Thus, aldosterone help in the maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure, and blood pressure. A small amount of adrenogenic steroid are also secreted by adrenal cortex, play a role in the growth of axial, pubic hair, and facial hair in puberty. देखिएगा इधर पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करती है, पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड, मतलब एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड, विच एक बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन प्लांट, जो एंडोक्राइन जो पार्ट होते हैं वो इसलेट ऑफ लेगरेंस होते हैं। देयर आर अबाउट 1 to 2 million islet of lignin in normal human pancreas, representing 1 to 2% of pancreatic tissue. देखिए दो मेन सेल होते हैं स्लेट ऑफ लिगरेंस के, एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं। अब जो अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब जो ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीनियस हार्मोन है, ये प्ले क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल हिपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनोलाइसिस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ब्लड शुगर, hyperglycemia जिसको कहते हैं। In addition, these hormones stimulate the process of gluconeogenesis, which also contribute to the hyperglycemia. Glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucagon is a hyperglycemic hormone. इंसुलिन क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन है, मेजर रोल इसका क्या होता है, ग्लूकोज हीमियोस्टेसिस। इंसुलिन क्या करता है, मेनली ऑन द हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट पे एक्ट करता है एंड इनहेंस द सेलुलर glucose uptake and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose from the blood to hepatocyte. देखिए जो ब्लड होता है उसमें लीवर सेल पे मूवमेंट होता है, ठीक है, एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इंसुलिन स्टिमुलेट द कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकागोन, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं इन टारगेट सेल। द ग्लूकोज homeostasis in blood is thus maintained jointly by two insulin and glucagons. Prolonged hyperglycemia lead to the complex disorder diabetes mellitus, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone body. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy.